अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Today we were we are going to discuss about the unit number 4, first aid, ibtidai tibbi imdad, its exercise. First of all, I am giving you some brief introduction about this chapter, that what is first aid. First aid is a life saving technique which people prefer to save lives with minimal equipment. First aid includes simple procedures which are added with some common senses. It is not classified as a medical treatment and cannot be comparable to a medical professional. It is a special practical and immediate care for an injury or sudden illness administered until professional medical help is available. Such emergency care provides self help in case of injury or illness. It is also critical in response to the natural disaster. First aid training covers care for wounds and sudden illness, care for specific injuries, accidents, prevention, and emergency procedures. One should recognize the fundamental of administering care, and this information is gained by obtaining training. The basic basis of first aid training is prevention. It is perpetually higher to be safe than to be sorry. By gaining the knowledge related to the first aid, it promotes the sense of safety and well-being among people, prompting them to be the additionally alert for and safe within the surrounding they are raised in. Awareness and desire to free from accident keep everyone secure, reducing the quantity of casualties and accidents. If an individual who is trained for the first aid administration happens to ascertain any casualty in his neighborhood, immediate action may be taken and lives can be saved. There are three major aims of first aid. The first major aim is obviously to preserve a person's life. Second one is to prevent further harm to the patient, and the third one is to keep the injury from worsening. First aid means responding to an emergency situation. Accidents happen always unexpectedly, but a life can be saved by having a basic knowledge what to do in emergency and knowing proper first aid procedure. Basic training in first aid skills should be tough in schools, in workplaces, and in general. Be learned by all. All is the mandatory to our modern and stressful life. So, students, this was a brief introduction about this chapter. Now we move on to the exercise of this chapter. First one is glossary. First word is accessible, means kable rasai, easy for anyone to obtain and use. Adhesive, चिपटने वाला या चिपकने वाला, means sticky and gluey. Antibiotic, Jarasim kush, a substance which is capable of destroying or inhibiting the growth of bacteria or other microorganisms. Infection, the agency by which disease is caused or transmitted. Ingredients, ajza, the substances that are combined to make something. Minor, small in size, means chota. Ointment, marham, a medical preparation in the form of a soft smooth paste. Rinse, jaldi jaldi dhona, wash something quickly. Tweezer, chimti, a small pair of pincer for taking up small objects. Students, next question is about the vocabulary.
Many fields have a specialized vocabulary. Identify specialized vocabulary related to the medical field in the text. So there are some specialized words. First one is scraps. Scraps, what I think it means, scraps का मतलब क्या हो सकता है, तो इसका मतलब डैमेज है, ठीक है, कोई नुकसान है. what it does mean, इसका मतलब क्या है scraps का, मीन लाइट कट, कोई हल्की सी खराश आ जाना. इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या है, एक डिजीज़ है. द एजेंसी बाय विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड और ट्रांसमिटेड, एक ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए से जो बीमारी है एक जगह से दूसरी जगह फैले. ऑइंटमेंट, ये ग्रीस टाइप यानी कि मरहम टाइप चीज़ है. अ सॉफ्ट स्मूथ मेडिकल पेस्ट अप्लाइड टू द वाउंड और स्कोर स्किन. बैंडेज, ये एक स्ट्रिप की तरह होती है, पट्टी जिसको हम कहते हैं, स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक ऑफ टाइपिंग अराउंड अ वाउंड और इंजरी. ड्रेसिंग means bandages, pieces of soft material for placing the on the wound. Stitches, movement of needle to sew cloth. हाँ जी, स्टिचेस क्या होते हैं, जैसे कि हम धागे के या सुई के ज़रिए से हम लोग किस चीज़ को सी रहे होते हैं, स्टिचेस टांके लगा रहे होते हैं. तो इसका क्या मतलब होगा, शॉर्ट पीसीज ऑफ थ्रेड दैट डॉक्टर यूज टू सीव नीडल टू सीव द एजेस ऑफ अ वाउंड. हाँ जी, किसी भी ज़ख़म को उसके किनारों के ज़रिए से सी देना सुई धागे की मदद से. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, complete the missing letters in the words below to match the meaning given on the right. All these words have prefix dis. दाएं तरफ दिए गए मानी के साथ मिलाकर नीचे दिए गए अल्फाज में छोटे हुए हरूफ लिखें. इन तमाम अल्फाज के शुरू में डिस लगाना है, ठीक है. ये जितने भी यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं इन तमाम के स्टार्ट में हमने डिस लगाना है और आगे उनका मीनिंग्स को देखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर अगर डिसलोकेट, ठीक है, टू पुट आउट पीसेज, ये क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं. अगर हम यहाँ पर इस वर्ड के साथ डिस लगाते हैं तो ये डिसलोकेट बन जाता है, मीन्स जोड़ कर अलग कर देना, जोड़े को अलग कर देना. अगर हम इस वर्ड के साथ लगाते हैं सेकंड तो इसको डिससेटिस्फाइड कह सकते हैं, ठीक है, मीन्स नाखुश होना, गैर मुतमिन हो जाना. डिस्ट्रैक्ट, टू डाइवर्ट, मीन्स तवज्जो हटाना. उसके अलावा डिसक्वालीफाई, टू एक्सक्लूड, डिसबिलीव, डिसप्रूव, ठीक है. यहाँ पर हम इसको नाअहल करार देना और यकीन ना करना. नाउ क्वेश्चन सी आल्सो रिलेटेड टू द वोकेबलरी. फर्स्ट वन इज नाउ यूज़ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस. ऊपर दिए गए वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. फर्स्ट वन इज डिसलोकेट, हिज लेग्स वॉज डिसलोकेटेड इन एन एक्सीडेंट. डिससेटिस्फाइड, मोहसिन हैज़ डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हिज न्यू जॉब. डिस्ट्रैक्ट, high volume distracted me from my work. Disqualify, our team was disqualified from the finals. Disbelieve, I think he disbelieved my story. Disproof, he disapproved my ideas. Next question is related to the comprehension. फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, मीन्स MCQs दिए गए हैं. फर्स्ट वन, इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कॉन्टीन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कॉन्टीन्यूस प्रेशर डैश. हाँ जी, अगर खून जो है वो वहाँ से बहाव के साथ निकलता है या प्रेशर के साथ तो क्या होगा. सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. सीक मेडिकल असिस्टेंस, उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी. सेकंड, थोरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डैश. तो यहाँ पर आएगा आंसर इन्फेक्शन एंड टेटनस. थर्ड वन, इफ़ अ डैश अपेयर स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट. इफ़ अ रैश, ठीक है, यहाँ पर रैश आएगा, अगर रैश अपेयर होता है तो हमें ऑइंटमेंट नहीं लगाना चाहिए. फोर्थ वन, चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डैश. एट लीस्ट डेली, हमें ड्रेसिंग जो पट्टी है उसको रोज़ाना के बेसिस पे चेंज करना चाहिए. फिफ्थ वन, बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल डैश, मीन्स words. Next question B. Next question is also related to the comprehension. Answer the following question. First one, you should not keep checking if the bleeding has stopped. Why? आपको बार बार नहीं चेक करना चाहिए कि खून रुका है कि नहीं, क्यों. So the answer is we should not keep checking the wound if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is formatting and cause bleeding to resume. इसकी वजह यह है कि इस वजह से
खून के लोथड़े जो बन रहे होते हैं उसको नुकसान पहुंचा सकती है या उसे अपनी जगह से हटा सकती है और खून के बहाव के दोबारा शुरू होने का सबब बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड? साबुन को ज़ख्म से दूर रखना क्यों ज़रूरी है? सो द आंसर इज़ द सोप कैन इरिटेट द वाउंड, सो इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल वाउंड। ये बात ज़रूरी है क्योंकि साबुन जो है ज़ख्म में सोजिश पैदा कर सकता है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड? जरासीम कुछ दवा या मरहम एक ज़ख्म की सेहतयाबी में कैसे फ़ायदेमंद होती है? सो द आंसर इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट इज़ गुड इन हीलिंग द वाउंड बिकॉज इट्स हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट एंड हेल्प्स बॉडीज नेचुरली हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस सतह को नमी या मरतूब रखने में मदद करती है। इसके अलावा ये जिस्म को कुदरती सेहतयाबी के अमल के तेज़ी से काम करने में भी मददगार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस? आपको क्या करना चाहिए अगर आपको उस चिपकने वाले मादे से जिसे ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है उससे एलर्जी हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? सो द आंसर इज़ आई शुड यूज़ एडहेसिव फ्री dressings or sterile gauze held in place with proper tape, gauze roll or a loosely applied elastic bandage। तो हमें चिपकने वाले मादे से पाक पट्टियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए या जरासीम से पाक बारीक कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए जिसे कागज़ की मदद टेप की मदद से अपनी जगह पर रखा जाता है या ढीली इलास्टिक की पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर? आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कब होती है? सो द आंसर इज़ वी नीड टू सी अ डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग और वी नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग। हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत तब होती है जब ज़ख़म सेहतयाब ना हो रहा हो या हम किसी किस्म की सुर्खी देखें या बढ़ता हुआ दर्द, मादे का बहाव देखें या हरारत या सूजन महसूस करें। 6th क्वेश्चन, व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ? आपकी जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद का जो सामान है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए? सो द आंसर इज़ फर्स्ट एड किट शुड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एड बुक, बैंडेड्स and elastic bandages, gauze and adhesive tape, antiseptic wipes, cotton, wool, safety pins and tweezers, scissors and latex gloves, calamine lotion and analgesic tablet and clinical thermometer। हाँ जी, हमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब, चिपकने वाली पट्टियाँ, इलास्टिक वाली पट्टियाँ यानी कि लचकदार पट्टियाँ, बारीक कपड़ा और चिपकने वाली टेप, जरासीम कुछ सफाई वाले कपड़े के टुकड़े, सेफ्टी पिंस, ट्वीज़र्स, कैंची, प्लास्टिक वाले दस्ताने, जलने पर लगाने वाला लोशन, तिब्बी थर्मामीटर और दर्द को गर्म करने वाली दवाइयाँ शामिल हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द ग्रामर। फर्स्ट वन इज़ अ पोजिशन ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब की जो मकाम है उसकी निशानदेही करनी है। प्लेस एडवर्ब एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस, एडवर्ब को उसकी मुनासिब जगह पर लगाना है। फर्स्ट वन, आई एम डैश हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे, आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे, ठीक है। सेकेंड वन, माई ब्रदर डैश गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज जॉगिंग, सो यहाँ पर आएगा ऑफन, माई ब्रदर ऑफन गेट्स अप एट 6 o'clock, ठीक है। थर्ड वन, ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट, वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ पर ये पोजिशन ऑफ एडवर्ब है लास्ट नाइट। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन टू हुंजा वैली, तो यहाँ पर एवर जो है ये एडवर्ब पोजिशन को जाहिर कर रहा है। फिफ्थ वन, द बर्ड्स वर चिर्पिंग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली ये है पोजिशन ऑफ एडवर्ब। 6, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव, आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 minutes, तो स्टिल जो है ये पोजिशन ऑफ एडवर्ब है। 7, ही सा अ ब्लाइंड बैगर इन द मार्केट, इन द मार्केट जो है ये एडवर्ब पोजिशन है, ठीक है, पोजिशन ऑफ एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज? एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन लाइक एन एडवर्ब, एक मुतल्लिक फ़ेल का जुज़्व जुमला जो अल्फाज का एक ऐसा ग्रोह होता है जो मुतल्लिक फ़ेल की तरह काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वर्क्स केयरफुली, केयरफुली जो है यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है। दे रेस्टेड एट सनसेट, सो एट सनसेट इज एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बी,
related to the adverb phrase. Find suitable adverb to replace each adverb phrase in the following sentence. First one, our teacher wanted that work to be done without delay. So the correct answer is our teacher wanted that work to be done immediately. Without delay की जगह हम क्या लिखेंगे? Immediately. Second one, she is without doubt the most caring person I have met. She is undoubtedly, without doubt की जगह पे क्या आएगा? Undoubtedly the most caring person I have met. Third one, this plant flowers once every year. So यहाँ पर once every year की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? Yearly. This plant flowers yearly. Next, fourth one, you should complete the work in a while. So in a while को हम अगर adverb phrase से करें, चेंज करें तो क्या आएगा? You should complete the work shortly. The two old friends met each other by accident. तो यहाँ पर क्या आएगा? The two old friends met each other accidentally. By accident की जगह पे क्या आएगा? Accidentally. Next, question C, also related to the grammar. Complete the following sentences with infinitive or gerund whichever is appropriate. ठीक है, यहाँ पर हमने gerund को और infinitive को यूज़ करना है. We felt the plane shaking in the storm. I've always disliked smoking. Where did you learn speak French? Is the exhibition worth visiting? Fifth one, I don't mind getting up early. Would love come with you? She seems know this place. D, question also related to the grammar. Identify gerund and infinitive in the following sentences. First one, minor cuts and scraps usually stop bleeding on their own. तो बेटा यहाँ पर जो bleeding का word है ये gerund को represent कर रहा है. ठीक है. Second one, to clean the area around the wound use soap and a washcloth. To clean जो है ये infinitive को infinite को represent कर रहा है. Third one, don't keep checking to see if the bleeding has stopped. तो यहाँ पर checking का word जो है ये gerund है. Fourth one, so try to keep it out of the actual wound. तो to keep जो है ये क्या है? Infinitive है. Fifth one, if a rash appears stop using the ointment. ठीक है, तो यहाँ पर using का जो word है ये क्या है? gerund है. Sixth one, if dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. तो यहाँ पर washing का word जो है बेटा ये gerund को represent कर रहा है. ठीक है, और to remove का word जो है ये infinitive को represent कर रहा है. Next, question E, also related to the grammar. Change the following sentences into the passive voice. Subject in the passive voice sentence may be skipped. First one, you must put out all smoking material. So अगर हम इसको passive voice में convert करें तो ये क्या बनेगा? All smoking materials must be put out. ठीक है. Second one, you must fasten the seat belt. So अगर हम इसको passive voice में करते हैं, the seat belt must be fastened. Third, they will demonstrate safety precautions. Safety precautions will be demonstrated. Fourth one, you should read the safety instructions. And passive voice is the safety instructions should be read. Fifth one, you can store small package in the overhead compartment. And the answer is small packages can be stored in the overhead compartment. Students, next question is about the writing skills. So the question is, write a paragraph on how to take care of cuts and scrapes. ज़ख्मों और ख़राशों की कैसे निगहदाश्त करते हैं उसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है. तो हम इसको देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ है. हाउ टू टेक केयर ऑफ कट्स एंड क्रैप्स. First of all, apply gentle pressure on the wound with a clean cloth. Second, after that, rinse out the wound with a clean water and remove dirt particles with tweezers cleaned with alcohol. Third one, then apply an antibiotic cream or ointment to the wound. Fourth, next cover the wound with a bandage
5th, change the dressing daily. If you are allergic to adhesive bandage, use adhesive free bandage. 6th one, if the wound is not healing, see your doctor. सो यहाँ पर इसके अंदर वन बाय वन करके उसको बताया गया कि अगर आपको कट या स्क्रैप्स आ जाएं तो आप कैसे करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने उसको जेंटली प्रेशर के ज़रिए, कपड़े के ज़रिए उसको साफ़ करना है। फिर उसके बाद उसको धोना है यानी कि पानी, साफ़ पानी से, ताकि उसके अंदर और ट्वीज़र्स की मदद से उसके अंदर से पार्टिकल्स, डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना है, और या फिर वहाँ पे अल्कोहल के ज़रिए से उसको साफ़ करना है। फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट, मरहम वगैरह या एंटीबायोटिक जो है ज़ख़म के ऊपर लगानी है। उसके बाद हमने अपने ज़ख़म को पट्टी की मदद से ढाँप देना है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि अपनी जो पट्टी है या ड्रेसिंग है उसको डेली चेंज करना है ताकि एलर्जी ना हो। और अगर आपको चिपकने वाले मादे से, एडहेसिव मटेरियल से एलर्जी होती है तो आपने उसको एडहेसिव फ्री बैंडेज से रिप्लेस कर लेना है। और फिर उसके बाद अगर आपका ज़ख़म जो है वो ठीक नहीं हो रहा तो आप अपने किसी डॉक्टर को चेकअप करवाएं। ठीक है बेटा, आई होप आपको इस चैप्टर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसकी एक्सरसाइज की यहाँ पर जितनी भी हमने ग्रामर पोर्शन किया, आपने उसको अच्छी तरीके से करना है। आपने कंप्रीहेंशन को अच्छी तरह करना है, वोकैबलरी पे अपने ख़ास तौर पर फोकस करना है। सेंटेंस फॉर्मेशन जो है ये पेपर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपके आता है लाजमी तौर पे, नंबर्स होते हैं इसके, तो आपने सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना है। आई होप आपको चैप्टर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।